امن مذاکرات کے باوجود کیا واقعی امریکہ ایران پر زمینی حملہ کرے گا؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے امریکہ کے پاس کون سے ممکنہ راستے ہوں گے اور کون سا راستہ خود امریکہ کے لیے سب سے بڑا جال ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا صرف چند اہم مقامات پر قبضہ کر کے ایران کو جھکایا جا سکتا ہے یا پھر ایسی ہر کوشش ایک طویل اور تباہ کن جنگ کا آغاز بن سکتی ہے؟ کیسے ہیں دوستو؟ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں ایک وضاحت ضروری ہے۔ اب جبکہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایک بار پھر مذاکرات جاری ہیں اور دنیا بھر میں بہت سے لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید اس بار کشیدگی کی بجائے سفارتکاری کامیاب ہو جائے، تو ایسے وقت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ممکنہ جنگی راستوں پر بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سیاست صرف امیدوں پر نہیں چلتی بلکہ امکانات پر بھی نظر رکھتی ہے۔ اگرچہ مذاکرات جاری ہیں لیکن ماضی کے تجربات یہی بتاتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں ایران کے معاملے میں صرف سفارتکاری پر انحصار نہیں کرتے۔ اگر انہیں کسی مرحلے پر یہ محسوس ہو کہ ایران کی کوئی دکھتی رگ ان کے ہاتھ میں آ سکتی ہے یا ایران کی کسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو وہ تمام تر مذاکرات کو پس پشت ڈال کر حملہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور دوبارہ فوجی دباؤ اور عسکری کارروائی کے راستے پر بھی جائیں گے۔ اسی لیے اس ویڈیو کا مقصد جنگ کی خواہش پیدا کرنا یا کسی تصادم کی حمایت کرنا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ حالات دوبارہ بگڑتے ہیں تو ممکنہ عسکری منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے، کن راستوں پر غور کیا جا سکتا ہے اور ان میں سے ہر راستہ اپنے اندر کس قدر بڑے خطرات اور پیچیدگیوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ برسوں تک یہ تصور کرنا ہی مشکل تھا کہ امریکی فوج کبھی ایران کی سرزمین پر قدم رکھے گی۔ یہ ایسا معاملہ تھا جسے عسکری اور سیاسی حلقوں میں ایک ریڈ لائن سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس لائن کو کراس کرنے والے کو بہت بھاری قیمت چکانا ہوگی اور تباہ کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگرچہ حالیہ دنوں میں ایران کے ساتھ ہونے والے نئے معاہدے نے وقتی طور پر دونوں ممالک کو براہ راست تصادم کے دہانے سے پیچھے ہٹا دیا ہے، لیکن اس سے بنیادی مسئلہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ اگر آئندہ ہفتوں یا مہینوں میں سفارتی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو عین ممکن ہے کہ کشیدگی کا اگلا مرحلہ صرف معاشی پابندیوں، بحری دباؤ یا چند فضائی کارروائیوں تک محدود نہ رہے بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ جائے۔ پہلی نظر میں ایران ایک قدرتی قلعے کا منظر پیش کرتا ہے۔ اس کے بیشتر علاقے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں سے گھرے ہوئے ہیں جبکہ ان کے درمیان وسیع صحرا، نمکزار اور دشوار گزار میدان پھیلے ہوئے ہیں جہاں جغرافیہ خود ایک طاقتور دفاعی ہتھیار بن جاتا ہے۔ تاہم امریکی محکمہ دفاع یعنی پینٹاگن غالباً اس قدرتی دفاع سے براہ راست ٹکر لینے کے بجائے مختلف حکمت عملی اختیار کرے گا۔ ایران کے اندر گہرائی تک پیش قدمی کرنے کے بجائے امریکی منصوبہ ساز ممکنہ طور پر اپنی توجہ جنوبی ساحلی پٹی پر مرکوز رکھیں گے۔ یہ نسبتاً محدود ساحلی علاقہ ایران کی معیشت اور دفاع دونوں کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی خطے میں تیل برآمد کرنے والے بڑے ٹرمینلز، تجارتی بندرگاہیں اور اہم فوجی تنصیبات واقع ہیں۔ مزید یہ کہ اس ساحلی پٹی کا براہ راست رابطہ خلیج فارس اور بحیرہ عرب سے ہے جہاں امریکی بحریہ نسبتاً آسانی سے اپنی عسکری صلاحیت استعمال کر سکتی ہیں۔ جو منصوبے اور عسکری آپشن کاغذوں پر پرفیکٹ پلان دکھائی دیتے ہیں، عملی میدان میں وہ سیاسی، معاشی اور عسکری پیچیدگیوں کے نہ ختم ہونے والے سلسلے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایران میں داخل ہونے کے لیے شاید ابتدائی چند کلومیٹر طے کرنا زیادہ مشکل نہ ہو مگر اس کے بعد چند 100 کلومیٹر ایسے ہو سکتے ہیں جنہیں عبور کرنے میں برسوں لگ جائیں۔ اس وقت واشنگٹن اور تہران ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی میز پر آمنے سامنے ہیں، لیکن اس کی وجہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی بحالی نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ جنگ خود امریکہ کی جیب اور سیاسی قدکاٹھ پر بہت بھاری اور نقصان دہ ثابت ہوئی ہے۔ ایران کا جوہری پروگرام اب بھی ایک حل طلب مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اسرائیل مذاکراتی عمل کو گہری بداعتمادی کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو صدر ٹرمپ دوبارہ اسی سوال کے سامنے ہوں گے جس نے پہلے بھی امریکی پالیسی سازوں کو الجھائے رکھا تھا، یعنی ایران پر ایسا مؤثر دباؤ کیسے ڈالا جائے جو اسے جھکنے پر مجبور کر دے اور اس مقصد کے لیے تہران تک زمینی پیش قدمی کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ اسی تناظر میں حالیہ عرصے کے دوران امریکی فوجی حلقوں میں ایک تجویز زیر غور رہی ہے کہ ایران کے چند انتہائی اہم اور حساس مقامات پر قبضہ کر کے انہیں آئندہ مذاکرات میں دباؤ کے مؤثر ذریعہ کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اس حکمت عملی کے تحت 5 ایسے مقامات کی نشاندہی کی جاتی ہے جنہیں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ان میں نمبر 1 ہے خارگ جزیرہ، نمبر 2 ہے آبنائے ہرمز، نمبر 3 ہے ابو موسیٰ، گریٹر ٹمب اور لیسر ٹمب کے جزائر،
नंबर 4 है चाबहार की बंदरगाह और नंबर 5 है तेल से मालामाल सूबा खोजिस्तान। इन तमाम मकामात में से हर एक ईरान के अंदर असर व रसूख कायम करने का एक मुमकिन रास्ता ज़रूर फराहम करता है, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसके बारे में यकीन से कहा जा सके कि वो अमेरिका को फैसला कुन अस्करी कामयाबी दिला देगा। इन तमाम इम्कानात में से सबसे पहले खार्क जजीरे का जिक्र करते हैं, क्योंकि ये इस हकीकत की बेहतरीन मिसाल है कि एक ही मकाम बैक वक्त किसी मुल्क के लिए सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। और ये जजीरा भी ऐसे ही है कि ईरान के लिए ये सबसे बड़ी ताकत भी है और ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी भी। रकबे के एतबार से ये एक निस्बतन छोटा और तनहा जजीरा है, लेकिन ईरान की मईशत में इसका किरदार गैर मामूली अहमियत रखता है। ईरान की तकरीबन 90 से 95% खाम तेल की बरामदात इसी जजीरे के जरिए दुनिया तक पहुंचती हैं। दुनिया भर से आने वाले तेल बरदार जहाज समंदर में यहाँ लंगर अंदाज होते हैं, खाम तेल अपने टैंकरों में भरते हैं और फिर मुख्तलिफ आलमी मंडियों की जानिब रवाना हो जाते हैं। अगर मजमूई तस्वीर देखी जाए तो खार्क जजीरा ईरान की बरामदी निज़ाम का धड़कता हुआ मरकज है। इस मकाम पर किसी भी किस्म की रुकावट पूरे तेल के बरामदी ढांचे को मफलूज कर सकती है, लेकिन ये महज इत्तफाक नहीं कि खार्क जजीरा इस कदर अहम बन गया। इसकी असल वजह खलीज फारस की जुग्राफियाई साख्त है। खलीज फारस निस्बतन कम गहराई वाला समंदर है, खसूसन साहिली इलाकों में पानी की गहराई बड़े बहरी जहाज़ों के लिए काफ़ी नहीं होती। दूसरी तरफ जदीद तेल बरदार जहाज अपने गैर मामूली हुजम और वजन के बायस महफूज आमद रफ्त के लिए तकरीबन 25 से 30 मीटर गहरे पानी के मोहताज होते हैं, जबकि खलीज फारस के बेशतर साहिली इलाके इस मियार पर पूरे नहीं उतरते। इसीलिए ईरान अपने बेशतर ऑयल फील्ड से खाम तेल निकाल कर उसे रिफाइन करता है और फिर पाइपलाइनों के जरिए इसी जजीरे पर मुंतकिल करता है, क्योंकि वहाँ पानी की गहराई इतनी है कि दुनिया के बड़े से बड़े तेल बरदार जहाज भी आसानी के साथ लंगरअंदाज हो सकते हैं। अगर कोई अमरीकी हुकूमत ईरान पर हकीकी और मौसर माशी दबाव डालने का इरादा करे तो तेहरान पर कब्जे के लिए शायद खार्क जजीरा ही सबसे कीमती हदफ साबित हो सकता है। इस पर कब्जा करके ईरान की मईशत को सख्त नुकसान पहुंचाया जा सकता है और इस मकसद के लिए मुल्क के अंदर दूर तक जमीनी पेशकदमी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन यही खसूसियत इस जजीरे को गैर मामूली हद तक खतरनाक हदफ भी बना देती है। खार्क जजीरे पर हमला महज एक महदूद फौजी कार्रवाई नहीं रहेगा, क्योंकि ईरान की खाम तेल की बरामदात का बुनियादी अनसार इसी मकाम पर है। इसलिए यहाँ पैदा होने वाली मामूली रुकावट भी फौरी तौर पर आलमी तवानाई की मंडियों को मुतासिर कर सकती है। इसके साथ ही खलीज के अरब ममालिक भी शदीद तशवीश में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें खदशा होगा कि ईरान इस हमले के जवाब में ऐसे इकदामात करेगा जिनकी कीमत पूरे खित्ते को चुकाना पड़ सकती है। यही खार्क जजीरे का सबसे बड़ा तजाद है। इस जजीरे पर होने वाली किसी भी कार्रवाई के असरात बहुत तेजी से पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकते हैं और एक महदूद फौजी ऑपरेशन को वसी बैनुल-अक़वामी बहरान में तब्दील कर सकते हैं। दूसरा मुमकिन ऑप्शन जिस पर बरसों से अस्करी और स्ट्रेटेजिक हलकों में सबसे ज्यादा बहस होती रही है वो है आबनाए हुर्मुज़। दुनिया में शायद ही कोई और समुद्री गुजरगाह ऐसी हो जिसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत आबराए हुर्मुज़ के बराबर हो। आलमी तवानाई की तरसील का एक बड़ा हिस्सा इसी तंग आबरी रास्ते से गुजरता है, इसलिए जो ताकत इस पर असरअंदाज होने की सलाहियत रखती हो वो आलमी मईशत पर भी नुमाया असर डाल सकती है। लेकिन इस गैर मामूली अहमियत के बावजूद इस पर अमली कंट्रोल हासिल करना इतना आसान नहीं जितना बज़ाहिर महसूस होता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आबनाए हुर्मुज़ कोई एक ऐसा मकाम नहीं है जहां सिर्फ एक फौजी अड्डे या एक जजीरे पर कब्जा कर लेने से पूरे इलाके पर अख्तियार हासिल हो जाए। हकीकत में ये मुख्तलिफ आबी गुजरगाहों, साहली पट्टियों, जजीरों, बहरी रास्तों और फौजी तनसीबात का एक पेचीदा निज़ाम है जिसके तमाम हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए अगर कोई ताकत इस अहम गुजरगाह पर मुस्तकिल कंट्रोल कायम करना चाहे तो उसे सिर्फ समंदर में अपनी बहरी कुव्वत दिखाने पर इक्तफा नहीं करना होगा, बल्कि ईरान के सहली शहर बंदर अब्बास और जजीरा कशम जैसे अहम मकामात पर भी फौजी कार्रवाई करना पड़ेगी। ये दोनों इलाके ईरान के सहली दिफा का बुनियादी सतून हैं। यहाँ से ईरानी बहरी सरगर्मियों, मिसाइल सिस्टम और दिफाई कार्रवाइयों का एक बड़ा हिस्सा मुनज़्ज़म किया जाता है, इसलिए इन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना तकरीबन नामुमकिन है। यहीं से एक और बुनियादी मसला जन्म लेता है। आबनाए हुर्मुज़ पर कब्जा करना शायद एक आसान मरहला हो, लेकिन उस कब्जे को बरकरार रखना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल और तबाहकुन मरहला है। इसके लिए सिर्फ एक कामयाब हमला काफी नहीं होगा, बल्कि ईरानी साहली दिफा, मिसाइल बैटरियों,
बहरी कुव्वत और दीगर अस्करी सलाहियतों को मुसलसल दबाव में रखना पड़ेगा ताकि वो दोबारा इस इलाके में मौसर कार्रवाई न कर सकें। इसका मतलब ये होगा कि अमरीकी अफवाज को दुनिया के सबसे ज्यादा हसास, मुतनाज़ा और कशीदा समंदरी खित्ते में तवील मुद्दत तक अपनी मौजूदगी बरकरार रखनी पड़ेगी, जहां हर लम्हा किसी नई झड़प या बड़े तसादम का खदशा मौजूद होगा। दूसरी तरफ ईरान के पास इतनी अस्करी सलाहियत जरूर मौजूद है कि वो इस पूरे ऑपरेशन को अमेरिका के लिए गैर मामूली हद तक महंगा, पेचीदा और दुश्वार बना दे। ईरानी सरजमीन से दागे जाने वाले रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल मुसलसल अमरीकी अफवाज पर दबाव बरकरार रख सकते हैं। इसी तरह ईरान की बहरी हिकमत अमली भी रिवायती बहरी जंगों से मुख्तलिफ है। उसके पास बड़ी तादाद में तेज रफ्तार हमला आवर कश्तियां मौजूद हैं जो इंतहाई बर्क रफ्तारी से अमरीकी बहरी जहाजों या सहली पोजीशनों के करीब पहुंचकर रॉकेटों और दीगर हथियारों से हमला कर सकती हैं। चुनांचे जिस लम्हे अमरीकी बहरिया आबनाए हरमुज को महफूज बनाने के लिए अपनी कार्रवाई शुरू करेगी, उसी लम्हे ये महदूद फौजी मुहिम एक तवील और थका देने वाली जंग में तब्दील होने का खतरा पैदा कर देगी, जिसके असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी आलमी मईशत भी इसकी जद में आ सकती है। तीसरा मुमकिन ऑप्शन जो वक्तन फवक्तन अमरीकी पुलिसी साजों की तवज्जो हासिल करता रहा है, खलीज फारस के चंद छोटे मगर इंतहाई अहम जजीरों पर कब्जा करने का है। क्योंकि अमरीका में मशरिक वस्ता में एक और तवील ज़मीनी जंग के लिए सियासी हिमायत पहले ही ना होने के बराबर है, इसलिए बाज़ माहिरीन निस्बतन कम लागत वाले अहदाफ को ज़्यादा काबिल अमल समझते हैं। इसी सोच के तहत अबू मूसा, ग्रेटर टम्ब और लेसर टम्ब के जज़ायर का नाम अक्सर सामने आता है। ये तीनों जज़ायर खलीज फारस के दहाने पर वाक़ हैं, जहाँ से गुजरने वाले बहरी रास्तों पर नजर रखना निस्बतन आसान हो जाता है। यही जुग्राफियाई हैसियत इन्हें गैर मामूली अस्करी अहमियत अता करती है। इस मंसूबे के हामियों का ख्याल है कि अमरीकी मरीन्स इन जजीरों पर उतर कर मुख्तसर वक्त में इन पर कब्जा कर सकते हैं। वहाँ मौजूद हवाई पट्टियों को दोबारा फाल बना सकते हैं, मजीद फौजी कमक और सामान की आमद के लिए मुस्तकिल राहदारी कायम कर सकते हैं और बाद इन्हें मुस्तकिल फौजी अड्डों में तब्दील कर सकते हैं। इन अड्डों तक रसद और फौजी सामान कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात से बआसानी पहुंचाया जा सकता है। कागज पर यह मंसूबा बज़ाहिर निहायत सादा, महदूद और मौसर दिखाई देता है, लेकिन जब यही मंसूबा अमली मैदान में आता है तो इसे तकरीबन उन्हीं मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो आबनाए हुर्मुज़ के मामले में सामने आती हैं। गुज़श्ता बरसों की कशीदगी के दौरान खलीज में कायम अमरीका की तकरीबन हर मुस्तकिल फौजी तंसीब को शदीद दिफाई दबाव का सामना करना पड़ा था। ईरानी हमलों के नतीजे में मुतअद्दिद रडार सिस्टम्स, मिसाइल दिफाई तंसीबात और दीगर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए थे। जब पहले से कायम मजबूत और मुकम्मल दिफाई अड्डों का तहफ़्फ़ुज़ ही मुश्किल साबित हुआ तो समंदर के जरिए किसी नई लैंडिंग को मुस्तकिल तौर पर महफूज रखना यकीनन उससे कहीं ज्यादा दुश्वार होगा। ये जरूर कहा जा सकता है कि अमेरिका के पास इन जजीरों पर कब्जा करने की अस्करी सलाहियत मौजूद है, लेकिन असल इम्तिहान कब्जे के बाद शुरू होगा। ईरान अपनी वसी मिसाइल पावर, ड्रोन हमलों और दीगर हथियारों की मदद से इन जजीरों को मुस्तकिल निशाना बना सकता है, यहाँ तक कि वो अमली तौर पर ऐसे महाज बन जाएंगे जहाँ अमरीकी अफवाज के लिए मुस्तकिल मौजूदगी बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। ईरान की इस अस्करी सलाहियत की बुनियाद सिर्फ इसके हथियार नहीं बल्कि इसका जुग्राफिया भी है। ईरान का साहिली इलाका तकरीबन 1500 किलोमीटर से ज्यादा तवील है, जबकि इस साहिल के अकब में जागरस के बुलंद पहाड़ी सिलसिले वाक़े हैं। ये पहाड़ न सिर्फ मिसाइल लॉन्चर्स और दीगर अस्करी साजो सामान को कुदरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, बल्कि वहाँ से दागे जाने वाले हथियारों का असर भी कई गुना बढ़ा देते हैं। इसके अलावा ईरान के पास कुछ ऐसे जदीद हथियार भी मौजूद हैं जिन्हें अभी तक बड़े पैमाने पर अमली जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया। इनमें फाइबर ऑप्टिक ड्रोन खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। ये आम ड्रोन्स की तरह रेडियो सिग्नल के जरिए कंट्रोल नहीं होते बल्कि फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए मुंसलिक रहते हैं। चूंकि इनका राब्ता बरह रास्त तार के जरिए बरकरार रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग या सिग्नल में मुदाखलत करके इन्हें नाकारा बनाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। बाज़ फाइबर ऑप्टिक केबलों की लंबाई 60 किलोमीटर तक होती है, जो ईरान के बेशतर अहम जजीरों तक बआसानी रसाई फराहम करती है। अगर ऐसे ड्रोन बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए जाएं तो वो बैक वक्त मुख्तलिफ सिमतों से अमरीकी अफवाज पर हमला कर सकते हैं और उनके दिफाई निज़ाम को शदीद दबाव में ला सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में अमरीकी मरीन्स इन जजीरों पर अमली तौर पर एक ऐसे महाज पर मौजूद होंगे जहां हर वक्त नए हमले का खतरा उनके सरों पर मंडलाता रहेगा। यूं जो मंसूबा इब्तदा में एक महदूद, कम लागत और निस्बतन आसान फौजी कार्रवाई महसूस होता है, वही चंद दिनों में एक ऐसे खतरनाक जाल में तब्दील हो सकता है जिससे निकलना अमेरिका के लिए इंतहाई दुश्वार हो जाएगा। चौथा मुमकिन ऑप्शन चाबहार की बंदरगाह है। खलीज फारस के इंतहाई अस्करी माहौल के बरक्स ईरान का यह साहिली इलाका निस्बतन खुला और पुरसकून और कम फौजी दबाव वाला समझा जाता है।
यहीं ईरान की वहद गहरे पानी की समुद्री बंदरगाह वाक़ है, जिसकी वजह से यहाँ तक बहरी रसाई दीगर कई मकामात के मुकाबले में निस्बतन आसान तस्वर की जाती है। लेकिन आसान रसाई का मतलब ये हरगिज नहीं है कि इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत भी खार्क जजीरे या आबनाए हुर्मुज़ के बराबर हो। चाबहार ना तो ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट का मरकज है और ना ही ये किसी ऐसी आलमी तिजारती गुजरगाह पर वाक़ है कि जिसकी बंदिश पूरी दुनिया को फौरी तौर पर मुतासिर कर दे। हाँ, अलबत्ता इसकी जुग्राफियाई हैसियत हमला आवर को मुश्किल में जरूर डाल सकती है। वो इसलिए कि एक तरफ ये ईरान के मरकजी फौजी और मुआशी मराकज से खासा दूर वाक़ है, इसलिए यहाँ अमरीकी लैंडिंग खलीज फारस जैसा फौरी भूचाल पैदा नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ इसका मरकज से फासला बहुत ज्यादा और दुश्वार गुजार है, जिससे यहाँ अस्करी कार्रवाई का फायदा उल्टा नुकसान में होगा। अगर अमरीकी अफवाज चाबहार पर उतरती हैं तो सिर्फ बंदरगाह पर कब्जा कर लेने से कोई फैसला कुन स्ट्रेटेजिक बर्तरी हासिल नहीं होगी। ईरान पर हकीकी दबाव डालने के लिए उन्हें बहरहाल अंदरूने मुल्क मजीद पेशकदमी करना पड़ेगी, जिसकी उन्हें बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। नतीजतन जो कार्रवाई इब्तदा में सिर्फ एक गहरे पानी की बंदरगाह तक महदूद दिखाई देगी, वो आहिस्ता आहिस्ता वसी ज़मीनी जंग की शक्ल अख्तियार कर सकती है, और इसके साथ साथ वो तमाम अस्करी, सियासी, मुआशी और लॉजिस्टिक पेचीदगियाँ भी जुड़ जाएंगी जो हर तवील जंग का लाजमी हिस्सा होती हैं। पांचवा और आखिरी ऑप्शन, जिसे खालिस अस्करी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो शायद ज़मीनी हमले के लिए सबसे ज़्यादा काबिल अमल और मौजू रास्ता करार दिया जा सकता है, वो है सूबा खुजिस्तान के जरिए ज़मीनी कार्रवाई। यही वो इलाका है जहाँ से खलीज फारस के साहिल से ईरान के सबसे अहम और कीमती खित्तों तक निस्बतन बरह रास्त रसाई हासिल की जा सकती है। खुजिस्तान सिर्फ जुग्राफियाई एतबार से ही अहम नहीं बल्कि माशी लिहाज से भी ईरान की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। मुल्क के तेल के ज़खायर इसी सूबे में वाक़ हैं। यहाँ बड़ी तादाद में अरब आबादी मौजूद है और सबसे बढ़कर ये कि इसकी सरहद अमरीकी फौजी अड्डों वाले मुल्क कुवैत से मिलती है। खुजिस्तान की ये जुग्राफियाई कुर्बत महज नक्शे पर मौजूद एक हकीकत नहीं बल्कि इसके दूर रस अस्करी नताइज भी हैं। अगर अमेरिका कभी इस इलाके में ज़मीनी कार्रवाई का फैसला करे तो गालिब इम्कान यही होगा कि उसकी अफवाज पहले कुवैत में जमा हो, वहाँ से इराक के जनूबी हिस्से खसूसन बसरा के रास्ते ईरान की सरहद अबूर करें। कई हवालों से ये वही रास्ता होगा जिसे माजी में सद्दाम हुसैन ने ईरान इराक जंग के दौरान अख्तियार किया था, लेकिन आज का खिताब माजी से बहुत मुख्तलिफ है। अब इराकी सरजमीन से गुजरने वाली किसी भी अमरीकी पेशकदमी को सिर्फ ईरानी फौज ही नहीं बल्कि ईरान की हिमायत याफ्ता मुख्तलिफ मुसल्लह गिरोहों की शदीद मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ सकता है, जिनमें सबसे नुमायां पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज हैं। इस तंजीम के अपने दावों के मुताबिक इसके जंगजुओं की तादाद 2 लाख से तजावज़ कर चुकी है। इसका मतलब ये है कि अमरीकी अफवाज ईरान की सरहद तक पहुँचने से पहले ही जनूबी इराक के वसी इलाकों में एक नई और पेचीदा जंग में उलझ सकती हैं, जो सिर्फ इराक और ईरान तक महदूद नहीं रहेंगी बल्कि अपनी नौयत के एतबार से एक बैनुल अक़वामी तनाज़े में तब्दील हो सकती हैं। यूं बज़ाहिर ये सबसे सीधा और मुख्तसर रास्ता हकीकत में सबसे ज़्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है। ताहम इन तमाम ज़मीनी रास्तों के अलावा एक और ऐसा अंसर भी मौजूद है जो जंग की पूरी सीमत तब्दील कर सकता है, और वो है ईरान के मगरबी इलाकों में सरगर्म कुर्द मुसल्लह गिरोह। अगर किसी मरहले पर अमरीकी अफवाज ईरान के अंदर दाखिल होती हैं तो ऐन मुमकिन है कि इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए ईरान की मगरबी सरहद पर मौजूद कुर्द तंजीमें अपनी कार्रवाइयों में तेज़ी ले आएं। ईरान की मगरबी सरहद तवील अरसे से मुख्तलिफ कुर्द मुसल्लह तंजीमों की सरगर्मियों का मरकज रही है। इनमें कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान, कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी, कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी, खोबात और कोमला की मुख्तलिफ तंजीमें शामिल हैं। पिछले कुछ अरसे में इनमें से मुतअद्दिद गिरोह तेहरान के खिलाफ मुतहद भी हुए हैं, जिसके बायस बाज़ तजज़िया निगार ये तस्वर पेश करते हैं कि किसी बड़ी जंग के सूरत में ये तंजीमें ईरान के लिए एक इजाफी महाज खोल सकती हैं। लेकिन इस हिकमत अमली की अपनी वाज़ेह पेचीदगियाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये हकीकत पेश नज़र रहनी चाहिए कि ये तमाम गिरोह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इनके सियासी मकासद अलग अलग हैं, अस्करी सलाहियतें यकसा नहीं हैं और इनकी तरजीहात भी एक जैसी नहीं हैं। ये भी मुमकिन है कि इनमें से बाज़ तंजीमें ईरान के खिलाफ एक मुकम्मल जंग का हिस्सा बनने से गुरेज करें, क्योंकि उसके नताइज इनके अपने वजूद के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा इराक में कायम कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट के पास भी ऐसी कई वजूहात मौजूद हैं जिनकी बिना पर वो अपने इलाके को एक नई जंग का मैदान बनते हुए नहीं देखना चाहेंगे, खसूसन इसलिए कि ऐसी किसी सूरत हाल में ईरान की मुमकिन जवाबी कार्रवाई का पहला निशाना भी वही बन सकती हैं। इधर इराक में सरगर्म ईरान नवाज मुसल्लह तंजीमें भी
इंतहाई मुख्तसर वक्त में पूरे खित्ते को जंग के एक नए महाज में तब्दील करने की सलाहियत रखती हैं। दूसरी तरफ तुर्की भी ऐसे किसी मंजरनामे को कबूल करने पर आमादा नहीं होगा जिसके नतीजे में कुर्द मसला दोबारा उसकी अपनी सरहदों के अंदर शिद्दत अख्तियार कर ले। इसलिए कुर्द मुसल्लह गिरोहों को एक अस्करी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना सिर्फ फौजी फैसला नहीं बल्कि एक निहायत पेचीदा सियासी मामला भी है। अगर अमेरिका किसी कुर्द बगावत की हिमायत करता है तो तेहरान इस पूरी जंग को बैरूनी जारियत के खिलाफ अपनी कौमी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी इत्तेहाद के दिफा की जंग के तौर पर पेश कर सकता है। ऐसी सूरत में जिस इकदाम से अमेरिका ईरान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने की कोशिश करेगा, ऐन मुमकिन है कि वही इकदाम ईरानी अवाम को अपनी हुकूमत के गिर्द पहले से ज्यादा मुतहद कर दे। फर्ज करें कि अमेरिका इन पांचों में से किसी एक रास्ते के जरिए ईरान के अंदर कोई मुस्तकिल फौजी ठिकाना कायम करने में कामयाब भी हो जाए, तब भी असल मुश्किलात उसके बाद शुरू होंगी। इसे मुसलसल सियासी दबाव, अस्करी मज़ाहमत, रसद की फराहमी, अफरादी कुव्वत की हिफाजत और तवील फासले तक सप्लाई लाइन को बरकरार रखने जैसे बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ेगा। यह भी हो सकता है जिस चीज को शुरू में ईरान पर दबाव बढ़ाने का मौसर जरिया समझा जा रहा हो, वही बाद में खुद अमरीकी अफवाज के लिए एक ऐसे जाल में तब्दील हो जाए जहां वो दुश्मन की सरजमीन पर फंस कर रह जाए। ऐसी सूरत में उन्हें बारूदी सुरंगों, बैलिस्टिक मिसाइलों, खुदकुश हमला आवर ड्रोन्स, तेज रफ्तार बहरी कश्तियों और मुसलसल छापामार हमलों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि हर गुजरते दिन के साथ इस जंग की कीमत मजीद बढ़ती जाएगी। हर फौजी मुहिम एक वाज़े मंसूबे और महदूद मकासद के साथ शुरू होती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जंग अपनी अलग रफ्तार, अलग मंतक और अपने अलग तकाजे पैदा कर लेती है जिन पर किसी एक फरीक का मुकम्मल कंट्रोल बाकी नहीं रहता। ईरान में दाखिल होना यकीनन एक मरहला है, लेकिन वहाँ एक तवील, महंगी और मुसलसल जंग को जारी रखना, कशीदगी को काबू में रखना, मकामी मज़ाहमत का सामना करना और अस्करी कामयाबियों को देर पा सियासी नताइज में तब्दील करना, इससे कहीं ज्यादा मुश्किल, पेचीदा और नुकसानदेह मरहला है। आखिरकार किसी भी जंग का फैसला सिर्फ इस बात से नहीं होता कि पहला हमला किसने किया या इब्तदाई बर्तरी किसके हिस्से में आई। हकीकी फतह हमेशा उस फरीक का मुकद्दर बनती है जो सबसे तवील आजमाइश, सबसे ज्यादा दबाव और सबसे भारी कीमत बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता हो।